کیا حال ہے؟ آج کیا پڑھنا ہے؟ نیٹرم لوڈ مکمل ہو گیا تھا، نیٹرم سیلف پڑھنا ہے اور نیٹرم فاس دونوں تیار ہیں؟ ہاں لیکن پہلے ہم وہ ذرا ٹیٹ بٹس ختم کر لیں. نیٹرم فاس بھی تیار ہے، کروٹیلس ہاریڈس ہو چکا ہے کب ہوا تھا؟ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے جو کل میں نے چیزیں بتائی تھیں؟ جو محاورہ ہے ایگزامینیشن فنک، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں؟ اور ایتھوزا رائٹ. یہ کس نے بتایا ہے؟ نہیں میں کھوکھر نے. ویل ڈن. کیا یہاں کہتے ہیں 3 A's کو یاد رکھیں. کیا 3 A's؟ اچھا ایتھوزا، اجنٹومیٹرکم اور اناکارڈیم تو مجھے نہیں، یہ انہوں نے 3 A بنائے ہوئے ہیں بس. لائکوپوڈیم امتحان کے لیے نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے اسپیچز وغیرہ کا خوف، پریزنٹیشن کا خوف جو ہے. امتحان کے لیے جو اناکارڈیم بھی کوئی نہیں ہوتی ہے امتحان کے لیے. یہ آپ نے بڑی دفعہ طالب علموں کو دیا جو کہتے ہیں کہ ہم جا کے تو اسٹیج پہ جا کے کنفیوز ہو جاتے ہیں. لائکوپوڈیم تو آپ لائکوپوڈیم 200 میں دیکھتے ہیں، بڑی افیکٹو میں نے دیکھا ہے اس کو، بہت مفید ہے. اور بھی ہے لائکوپوڈیم کے علاوہ بھی کوئی چیز اجنٹومیٹرکم. لیکن یہ اسپیسیفک امتحان کے جا کے تو کنفیوز ہو جانا، دماغ سے باتیں نکل جانا، یہ چیز ہے جس کے لیے وہ یہ مفید ہے یہ چیز. اناکارڈیم یہ کہتے ہیں، میرے تجربے میں تو نہیں کبھی آئی، دیکھیں وہ میں شاید لکھا ہو کہیں. آپ نے کہاں سے سیکھا اناکارڈیم کا؟ یہ عام معاملہ ہے. وہ ٹیوب بنانے کے ساتھ ہوا تھا بیچ میں لاہور. جی سمپٹم تو ہے اناکارڈیم. اچھا کیا لکھا ہوا ہے نکالنے اس میں سے؟ وہ اور چیز ہے. سرجیکل شاکس کے لیے کون سی چیزیں ہیں؟ آنے کا تو ہونا چاہیے جی. آدمی کا تو عمومی ہے نا، وہ پہلے بھی دے دینی چاہیے بعد میں بھی، لیکن جو اسپیسیفک ہے سرجیکل شاک کے لیے، جسے بعض وقت فلیکس ہو جاتا ہے، اسٹرونشیم کارب یاد رکھیں اچھی طرح. اور اگر سرجیکل شاک سے گردے فیل کر جائیں تو کاسٹیکم should not be forgotten. کاسٹیکم کے ساتھ اگر آرمی کا بھی ملا دیا جائے تو بہت اچھا کام کرتی ہے. یہ جو ہماری بیٹھی ہے نا سامنے، کیا نام ہے اس کا؟ عارفہ. یہ اس کی مثال ہے نا ایک زندہ خدا کے فضل سے. بالکل ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کر دیا تھا ختم. گردوں نے 2-3 دن سے بالکل پیشاب نہیں بنایا تھا اور ٹوٹلی ڈیڈ نظر آ رہے تھے. اس وقت دعا کے ساتھ یہ بھی دیا میں نے ان کو، آرنیکا اور کاسٹیکم. اور پہلی اطلاع ملی کہ خون آیا ہے گردوں میں سے. میں نے کہا خون آنا تو خیر گھبرانے کی بات نہیں، کچھ حرکت ہوئی ہے وہاں.
और थोड़ी देर के बाद फिर इतला मिली कि खून ज़रा पतला हो गया, बीच में पानी भी मिलना शुरू लग रहा है और 24 घंटे के अंदर अंदर नॉर्मल पेशाब जारी हो गया और बिल्कुल जिस तरह करोड़ के किनारे से मरीज वापस आता है उस तरह वापस आई है अलग फिर से, और कोई बुरा असर नहीं है, पहले से ज़्यादा अच्छी सेहत हो गई है। नहीं हाँ तो आर्निका और कॉस्टिकम, स्ट्रोंशियम कार्ब अगर अमूमी क्लैप्स हो जाए और क्या क्लैप्स की चीजें हैं, अचानक क्लैप्स होने में कार्बोहाइड्रेट, और आप बताएं जी। एक्सीडेंट्स में जो होता है उसके लिए क्या इलाज है? हाँ? एक्रोनाइट भी दे सकते हैं। एक्रोनाइट और आर्निका मिला के 200 और उसके अलावा कार्बोवेज अगर एकदम सिंक कर जाए सारी ताकत, लेकिन खासतौर पर सर्जिकल के लिए स्ट्रोंशियम कार्ब है और मेरा ख्याल है कि एक्सीडेंट्स में भी इसको काम करना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ। आरम नेट है बच्चों में जहां अजाब आज पूरे उतरते नहीं नीचे, उनके लिए ये बहुत चोटी की दवा समझी जाती है, आरम मेटेलिकम, लेकिन ये 200 या 10,000 में बेहतर बताई गई है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो बड़ी उम्र में होता है उसका क्या इलाज है? बराइटा कार्ब एंड मुस्तकिल ताकत की दवा है और अच्छी दवा है। उसके अलावा बेराटा कार्ब और बेराटा मोर, लेकिन ये ज़्यादातर मुफीद है अगर छोटी उम्र में बड़ी उम्र आ जाए, यानी सालों के लिहाज से छोटी उम्र हो और वैसे बड़ी उम्र दिखाई दे और दिमाग पीछे हो, ये तजाद इसमें पाया जाता है बेराटा कार्ब में। इसलिए बड़ी उम्र में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है उसको ये अमूमन जिसको सेनिलिटी कहते हैं वो अगर जल्दी वाक़या हो तो उसके लिए अच्छी दवा है, लेकिन लंबा अरसा इस्तेमाल करानी पड़ेगी और बाज़ दफ़ा वॉश करना पड़ता है। इसके साथ ब्लड प्रेशर गिर जाता है, ख़ासतौर पर डायस्टोलिक काफ़ी नीचे आ जाता है बाज़ दफ़ा, इसलिए इसको छोड़ कर ब्लड प्रेशर का को ज़हन सामने रखते हुए फिर देना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए इसके मुताबिक। और अगर बचपन में दिमाग पीछे हो और जिस्म भी पीछे हो और चेहरा बाज़ दफ़ा बड़ी उम्र बताता है, उस वक्त ये बेराटा कार्ब और बेराटा मोर दोनों ही मुफीद हैं। कैलेंडुला का आपको मैंने बताया था, गहरे जख्मों में 200 ताकत में भी मुफीद है और अगर कैंथरिस के साथ मिला के दी जाए तो गहरे बर्न्स में जो जलने के गहरे जख्म हैं उनमें बहुत मुफीद है। ऑपरेशन के बाद जो पेट में हवाएं होती हैं उनके लिए कार्बोवेज मुख्तलिफ पोटेंशियों में सजेस्ट की गई है। बाज बहुत लो देते हैं 3x वगैरह, और बाज 6 पोटेंसी से लेकर 200 तक मुख्तलिफ तजुर्बे बताते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि छोटी पोटेंसी से शुरू करके अगर जल्दी फायदा ना हो तो आगे बढ़ा दिया जाए उसको, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक ही मरीज में हर मरीज में एक ही पोटेंसी काम नहीं करती,
मुख्तलिफ मरीज़ मुख्तलिफ पोटेंसियाँ चाहते हैं। मैंने नक्स की मिसाल दी थी। अगर बिलअमूम एक आदमी हसास मिजाज का हो और ओवर सेंसिटिव बेशक ना, नॉर्मल हसास मिजाज का हो, उसको अगर आप सोने के लिए 200 नक्सवामी का दे देंगे तो बाद में उसकी नींद बिल्कुल ही उड़ जाती है। और आम निस्बतन क्रूड मिजाज के रोज़मर्रा के अखड़ निस्बतन हों, ज़रूरी नहीं क्रूड ही हों अर्तजाज से, मगर ज़्यादा सख्त असाब के हों, उनको 30 काम नहीं करती, उनको 200 दें तो काम करती है। तो ज़्यादा गहरा मैसेज देने की ज़रूरत पड़ती है। चनांचे ऐसे मरीजों में मैंने देखा है 30 दी है, नाकाम हुई, 200 दी तो फ़ायदा हो गया। और जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं उनको लो देनी पड़ती है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा तेज़ मैसेज दे तो एक्साइट कर देती है। तो होम्योपैथिक पोटेंसी जो है बहुत ही डेलिकेट मामला है, इसको बड़े गौर से इस्तेमाल करना चाहिए और दवा रिजेक्ट करने से पहले कि अब ये काम नहीं कर रही, दूसरी पोटेंसियाँ इस्तेमाल कर लीजिए। अगर मरीज़ वक्त दे तो कोई हर्ज नहीं, इससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है। लेकिन जब किसी पोटेंसी में काम करे तो फिर गौर करना चाहिए कि किस मरीज़ में इसने इस पोटेंसी में काम किया है, और वजह ज़रूर होती है कोई, इसलिए रैंडम नहीं करना चाहिए। अपने जहन में नक्शा जमा लें और अगर आपने बाकियों को फ़ायदा पहुंचाना है तो नोट लिख लें, मुझे भी भिजवा दिया करें कि ये पोटेंसी थी, इस मरीज़ में इसने काम नहीं किया, हमने फ़लाँ इस्तेमाल की तो काम किया, और मरीज़ का मिजाज ऐसा है मुअय्यन, तो इस हो सकता है इस मुअय्यन मिजाज के मरीज़ में हमेशा यही पोटेंसी काम करे, ये एक इम्कान खुल जाता है। और वो फिर हम तजुर्बा करके देख लेंगे कि आया आपका सोचा हुआ इम्कान दुरुस्त है या गलत है। कार्बोवेज में जो बताया ना पोस्ट ऑपरेटिव हवाएं, इसमें मेरा पीर साहब कल जो मरीज आए थे हमारे पास हैं, जिनको स्पेशल नहीं आप बाकी बातें ना खोलें, आप चुप कर जाएं, मुझसे वापस आकर पूछ लेना। अच्छा बस ठीक है। अब दूसरे मरीजों के ना हाल खोल बता रहा हूं। कार्बोवेज की जो अमूमी इलामत किताबों में मिलती है वो यह है कि जिस्म के ऊपर की तरफ दबाव होता है और प्रेशर ऊपर की तरफ, और इरेक्टेशन से आराम मिलता है, बार बार डकार से आराम मिलता है। अब पोस्ट ऑपरेटिव में जो कार्बोवेज को दिया गया है, मेरे नज़दीक ये ज़रूरी नहीं है कि कार्बोवेज काम करे। बाजू मैंने काम की देखी है, बिल्कुल काम नहीं किया, उसके बजाय नक्सवामिन ने काम किया है, क्योंकि बाज़ दफ़ा पोस्ट ऑपरेटिव शॉक की वजह से अंथड़ियाँ जो हल्की हल्की मूवमेंट हर वक्त करती रहती हैं, मसल्स उसके इर्द गिर्द यूँ दबते रहते हैं ताकि खाने को नीचे की तरफ धकेलें। इसलिए एक मरीज़ अगर निस्बतन उल्टा भी लेटा हो, बाज़ दफ़ा किसी मरीज़ को टांगे ऊपर करके उल्टा लेटाना पड़ता है सब नीचे, तो उसका खाना मुंह से तो नहीं बाहर निकलता, उसी तरह वो हरकत करके अपने आखिरी किनारे तक पहुंचता है। इसको पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, ठीक है? हाँ, और यूँ करके स्क्वीज होती रहती है। ऑपरेशन के शॉक से ये मूवमेंट बंद हो जाती है और उसके नतीजे में लाजमन हवाएं ऊपर जमा हो जाएंगी, वैसे भी पेट में भी बेचैनी होगी। उसमें नक्सवामी का बहुत इफेक्टिव है, ये उस खोई हुई हरकत को बहाल कर देता है। और चीनियों ने भी एक पोषण बनाया हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा मौसर है। वो ऑपरेशन के साथ ही वो मैदे में उसका वो पंक्चर कर दे, टीका लगा देते हैं, इंजेक्शन कर देते हैं, और बगैर ताख़ीर के फ़ौरन हरकत दोबारा शुरू हो जाती है। तो चूँकि अमूमन
ऊपर की तरफ दबाव होगा अगर अंतड़ियां हरकत कम कर दें, और कार्बोवेज की इलामत में ऊपर का दबाव लिखा हुआ है। गालिबन इस वजह से ये मुहावरा बन गया है कि ऑपरेशन के बाद कार्बोवेज, समझे हैं? बाज केसेस में फायदा दे भी सकती है, लेकिन कोई अमूमी दवा नहीं, बल्कि नक्स इसके निस्बतन ज़्यादा यकीनी है अगर ऑपरेशन की बात हो। ऊपर की तरफ जो दबाव है इसमें कार्बोवेज अकेली अपनी इलामत में काफ़ी नहीं है। बहुत सी दफ़ा कई दफ़ा दे के देखा है, थोड़ा सा रिलीफ देती है, फिर भी उसी तरह रहता है। हवाएं पैदा करने के जो मुहर्रिकात या फैक्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उनके नतीजे में जो 2 या 3 दवाओं में महदूद किया ही नहीं जा सकता मरीज़ को। आमतौर पर आपको हवा के ताल्लुक में 3 दवाएं नुमाया तौर पर मिलेंगी, चाइना, लाइकोपोडियम, कार्बोवेज। और इसका आसान फार्मूला चुटकुले के तौर पर आपको होम्योपैथी किताबों में ये मिलेगा कि ऊपर दबाव कार्बोवेज, नीचे दबाव लाइकोपोडियम, सारे पेट में चाइना। ये ठीक नहीं है, ये फार्मूला बहुत कम काम करता है। कार्बोवेज के साथ बिलअमूम बदबू होना बड़ा ज़रूरी है। कार्बोवेज की असल पहचान ये है कि इसकी इरेक्टेशंस हों या हवा वैसे खारिज हो, ये इसमें सड़ान और बदबू पाई जाती है, और बैक्टीरियल एक्शन है कोई जिस्म के अंदर, या वर्म्स हैं या कोई और चीज़ें वो काम कर रही हैं, और उसकी वजह से मुतफ़न हवा पैदा होती है। ये पहचान ऐसी है जो निस्बतन ज़्यादा मौसर और कारआमद पहचान है। दूसरे, चाइना की जो पहचान है बगैर बदबू के हवा और सारे पेट में गड़गड़ करे, ये दरअसल मलेरिया के बाद की जो खुश्की होती है उससे ताल्लुक़ रखती है, और उसकी ख़ास ये पहचान है कि वो फिरती रहती है हवा और खुश्क सी अंतड़ियाँ हो चुकी होती हैं। उसमें चाइना काम करे, फौरी अगर ना भी करे तो रफ्ता रफ्ता उस मिजाज को बदल देगी जो खुश्की की वजह से पैदा हुआ है। लाइकोपोडियम दरअसल जिगर की दवा है, और लाइकोपोडियम की एक हरकत है कि इसकी बीमारियां ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करती हैं। इस वजह से जो पेट की तकलीफें वो बाज़ दफ़ा नीचे आके सेटल हो जाती हैं। और दूसरा, इसमें रुख है दाईं तरफ से बाईं तरफ का, तो महज छोटी छोटी इलामतों पर, सतही इलामतों पर उनको अकेला अकेला देखकर आप हकीकी मानों में होम्योपैथिक इलाज नहीं कर सकते। मिजाज समझ लें तो उसके नताइज में से बाज़ दफ़ा एक नतीजा इन इलामतों से मुताबिकत खा जाएगा, बाज़ दफ़ा नहीं खाएगा, बाज़ दफ़ा मुकामी तौर पर नीचे ही कोई तकलीफ होती है। ज़रूरी तो नहीं कि लाइकोपोडियम असर करे। लाइकोपोडियम की ख़ास इलामत यही है कि ये इसकी हरकत ऊपर से नीचे की तरफ और दाएं से बाएं की तरफ है, और जिगर की ये एक बहुत चोटी की दवा है। बस अगर जिगर मरकज़ हो तकलीफ़ों का, और वो तकलीफ़ें अंतड़ियों से होती हुई बिलाखिर निचले हिस्से में आके जमा हो जाएं, और ये अमूमन आर्जी तौर पर नहीं हुआ करता, ये एक निस्बतन लंबे अरसे की बीमारी के नतीजे में इलामत पैदा होती है। आर्जी तौर पर बाज़ दफ़ा कोई चीज़ अटकी है नीचे जाकर, उसे नीचे ही दर्द होगी, कोई कब्ज़ हुई है और इंफेक्शन नीचे हो गई है उसकी, और कंपेक्शन कहते हैं उसको, इकट्ठा होके जी, उस वक्त भी नीचे दर्द ज़्यादा होती है। इसलिए जनरलाइज नहीं करना, मेरा मतलब यह है। लेकिन अगर और कुछ नज़र ना आए तो वक्ती तौर पर देने के लिए बेशक इस्तेमाल कर लें। मैंने एक नुस्खा बनाया हुआ था रोज़मर्रा के लिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा मेरे मरीज़ एक दिन में 100 से भी बढ़ जाया करते थे, और वक्फ़े जदीद का काम करना था, ऊपर से दूसरे भी काम थे, खुदा मलहम दिया इधर उधर, तो इतना वक्त ही नहीं मिलता था। तो चंद मैंने
टकसाली के फार्मूले बनाए थे, उनमें एक CCL नाम रख दिया था, ये कार्बोवेज, लाइकोपोडियम और चाइना रूटीन के तौर पर देता था। 15-20% केसेस में काम करता था, हर जगह काम नहीं करता। लेकिन अगर फौरी तौर पर मरीज गले से उतारने हो या उनका मर्ज गले से उतारना हो तो ये एक फार्मूला है जो इब्तदा में काम करेगा बाज़ मरीजों पर, जहाँ नहीं काम करेगा वहाँ फिर स्पेसिफिक इलाज करना पड़ता है। ठीक है, और ये बात फिर याद रखें, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर एक फार्मूले में एक दवा मौजूद हो और वो फार्मूला काम न करे तो हर दवा को आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये गलत है कि चूंकि लाइकोपोडियम शामिल है इसलिए लाइकोपोडियम अब असर नहीं करेगा। मैंने कई दफ़ा देखा है एक फार्मूले के अंदर, यानी एक नुस्खे के अंदर कालीफास मौजूद है और नुस्खे ने काम नहीं किया। जब कालीफास को निकाल कर चूंकि उसकी बाज़ अलामतें नुमायां नज़र आईं, अलग दी तो फौरन काम किया है। इसलिए ये जो नुस्खों का रुझान है ये हंगामी ज़रूरत के पेश नज़र हम इसको कबूल कर लेते हैं, मगर अगर अच्छा होम्योपैथ बनना है तो इनफरादी तौर पर दवाओं से ऐसी वाकफियत हासिल करें कि मरीज के साथ एक दवा मुअय्यन जहन में उभराए। जब वो एक सही हो तो उस जैसी दवा कोई काम नहीं करती, वो तो यूँ लगता है कि सब जादू हो गया है, अचानक पूरी तरह उसको कंट्रोल कर लेती है। समझ गए? और वहीद माशाल्लाह ठीक चल रहा है अभी तक, आज भी काम किए, कोई छींक कोई तकलीफ नहीं है। एक ही ऊंची ताकत में नेट्रिन और CM की खुराक दी है इसको, और उसके बाद ना छींक ना नजला ना फूं फूं हर वक्त की, आराम से सोने लग गया है। सिर्फ खारिश है, तो वो मैंने कहा था खारिश की दवाई अभी नहीं देनी, कोई बैद नहीं कि नेट्रिमोर ही की खारिश हो वो जिसके दबने से हुआ हो, तो नेट्रिमोर पहले उसको बाहर निकालेगी फिर बाहर ही ठीक कर देगी। आज उसने खारिश नहीं की थी, डेढ़ घंटा में बस बैठा है और खारिश नहीं की। अब वो नहीं बैठा था, पहले कोई 5-10 मिनट बैठा है, जब तक आप देखते तो अच्छा, तो 10-15 मिनट बैठा है वहाँ, उसको भी बिल्कुल कोई खारिश नहीं कर रहा था। अच्छा, बिल्कुल नहीं कर रहा था। बाद मरीज अपनी जगह दूसरे को खारिश शुरू कर देते हैं। कंप्यूटर को कर रहा था। दो मुसाफिर बैठे हुए थे बस में, तो कुछ देर तक एक उनमें से खारिश करता रहा बड़े जोर जोर से। जब कुछ नहीं, एक मुसाफिर हैरान होकर उसको देख रहा था, तो उसने कहा तुम ये खारिश क्यों कर रहे हो आपका? उसने कहा मैं भी हैरान था, खारिश करो मजा नहीं आ रहा। तो दोनों जुड़ जाते हैं बसों में, जब ये पैक करते हैं ना क्लीनर, तो बहुत खतरनाक पैकिंग होती है। नॉर्मली जब जहाँ 5 आदमी बैठ सकते हो 8-8, 10-10 ठोस देते हैं वो, और वहां पट का फर्क नहीं रहता। एक की रान दूसरी रान का फर्क बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसने कहीं गलती से आपको तो नहीं खारिश शुरू कर दिया? अपने कंप्यूटर कर रहा था। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, लड़की इतनी बड़ी लगती है आपको? वो सोच की बात है। अच्छा जी, कार्बोवेज हो गई। हाँ, हवाओं के लिए एक दवा है रेफिनुस। रेफिनुस पता है क्या चीज है? मूली। मूली से जो हवाएं पैदा होती हैं खौफनाक, उनका इलाज भी रेफिनुसी से, उससे मिलती जुलती हवाओं का है। अब मैं हवाओं का सारा चैप्टर आपको बता देता हूँ क्या क्या बातें इसने तजवीज़ की हुई हैं। कहता है कार्बोवेज की पहचान तो ये इरिटेशन से रिलीफ होता है, और ये कोई खास रिलीफ ऐसा कोई नहीं होता, होती रहती है फिर भी।
lycopodium when there is much flatus, खाली ये लिखो, lycopodium when there is much flatus and raphanus when there is incarcerated flatus. Incarcerated से क्या मुराद है? जो पकड़ी गई हो, कहीं जो गुच्छे में आ गई हो. कार्सरेशन तो छीलने को कहते नहीं कहते, जख्म लगने को. या मेरा ख्याल है पुराने या देर बाद में भी इस्तेमाल गालिबन होता है. इनकासरेटेड गालिबन जाके डिक्शनरी देखने को मुझे है. मेरे जहन में तो इस लफ्ज़ से ये जहन में आता है जैसे छील लिया जाए या जख्मों की वजह से जो निशान पड़ जाते हैं जो दर्द पैदा करते हैं, वुंड्स जो होते हैं इस किस्म के सथी वुंड्स अंदर हों या बाहर हों, मगर खुरचने से जिस किस्म के जख्म पैदा होते हैं, छिलने से. लेकिन ये इनकासरेटेड फ्लैटिस की नहीं समझ आई, या वो मेरे जहन में गलत माने आए हों. मैं चेक करूंगा, कल आपको बताऊंगा. फिर वो जो माना इस मुहावरे में जहन में आया था वही दुरुस्त, वही माना इसके पेश नज़र है. अगर पकड़ी गई हो दोनों तरफ से, जैसे किसी ट्यूब में एक तरफ से हाथ डाल के फूंक भर के दूसरी तरफ से मुट्ठी बंद कर दें, वो जो कैफियत है वो ये कहता है कि रेफरेंस में मिलती है. मूली खा के तो नहीं होती है. वो तो लगता है कि दोनों तरफ से वो मुट्ठी खोल दी है. मूली के असर से इंसान को डकार भी आते हैं, जो मरीज जो ज़्यादा खाए हवा भी आराम से निकलती है. ये उलट बात कर रहा है, इसलिए एक तजुर्बा करके देखें आइंदा. लंदन में बहुत हवाएं हैं, इसलिए मरीज ढूंढने को मुश्किल काम नहीं. कहता यही अगर एहसास हो कि बंद हो गया दोनों तरफ से, तो परस्टिल्ला और चाइना भी इम्कान है. परस्टिल्ला तो बाज़ दफ़ा अगर ये पता चल जाए कि ग़िज़ा बेहतियाती हो गई है, वो फैट्स ज़्यादा खाई गई हों रोज़मर्रा के दस्तूर से हटकर, तो फिर परस्टिल्ला बहुत इफ़ेक्टिव है उसमें. और कार्बोवेज भी फैट से ताल्लुक़ रखती है, मगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से. इन दोनों में फ़र्क जो मैंने देखा है, अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाए गए हों तो परस्टिल्ला के मुकाबले पर ये कार्बोवेज ज़्यादा बेहतर है. अगर फैट्स खाई गई हों तो परस्टिल्ला, और गोश्त के के लिए और चावलों के बद असर के लिए नक्सवामिका. ठीक है. चावलों में भी कार्बोहाइड्रेट तो है हाँ, मगर उसको इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कुछ एलर्जिक है फिनोमिना. चावल के खाने से कार्बोहाइड्रेट्स के बद असर से तकलीफें नहीं पैदा होती, बल्कि बाद में चावल खाए और बेचैन हो गई तबीयत, बाद में नींद बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है. कई किस्म की ऐसी चीज़ें हैं जो एलर्जिक फिनोमिना है, उसका कार्बोहाइड्रेट से ताल्लुक नहीं. और इसलिए नक्सवामिका काउंटर में ये पैदा कर देती है. चावलों के लिए नेक्ट्रम सल्फ बताया होगा. हैं? क्या ड्राई होने लगता है. नहीं, नेक्ट्रम लगता है, नेक्ट्रम सल्फ लगता है. ब्राउनिया कब्ज वगैरह के लिए अच्छी है, मगर जैसे कि मैंने कहा है ना, उन बाज़ बातों में बाज़ दवाएं इस्तेमाल में आके पता लगा है कि वो मुफीद होती हैं. चावल की एलर्जी के खिलाफ नक्सवामिका ज़्यादा बेहतर काम करता है. गोश्त तिक्के वगैरह ज़्यादा खाए जाएं तो नक्सवामिका भी और फिर ब्राउनिया भी. अक्सर मीठी भी होती हैं, नक्सवामिका पहले बाद में ब्राउनिया. और अगर ख़तरा हो किसी किस्म की सेप्टिक होने का, गोश्त ख़राब हो, तो फिर स्ट्रेट अवे सल्फर पैरोजिनम. कोई भी इलामतें पैदा हों, जैसे बुखार चढ़ रहा है या दिमाग को
कोई चीज़ चढ़ रही हो तो उसका सल्फर और पैरोजिन इकट्ठा इलाज है। कॉलोफाइलम के मुतालिक ये कहता है, ये दुरुस्त है, ये मेरा भी तजुर्बा है, अगर ऐसी मरीज़ाएँ जिनके मुतालिक या एबॉर्शन के ख़तरे हों या बर्थ में डिफ़िकल्टीज़ पहले मालूम हों, उनको कॉलोफाइलम अगर कुछ अरसा खिलाई जाए तो दोनों ख़तरात के खिलाफ बहुत अच्छा काम करती है। और वो मरीज़ाएँ जिनको कॉलोफाइलम कुछ अरसा खिलाई जाए उनकी चाइल्ड बर्थ आसान हो जाती है। चाइल्ड बर्थ को आसान करने का जो टक्साली का फार्मूला है वो पस्टिल्ला है। आदमी का तो वैसे ही देना चाहिए हर चाइल्ड बर्थ से हफ्ता 10 दिन पहले ऊंची ताकत में, और पस्टिल्ला दर्दों को रेगुलेट कर देती है और अमूमन अच्छा असर दिखाती है। लेकिन अगर दर्दें ज़्यादा हों और गलत हों फिर अलग अलग दवाएं हैं। लेकिन कॉलोफाइलम अगर अलामतें अभी ज़ाहिर ना हुई हों, कुछ भी नहीं पता कि किस तरह बिहेव करेगा मरीज़, उसको पहले से शुरू करा दें तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। फाइटोला का 1000 में अगर ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो, फाइटोला का नहीं, हम सॉरी, नहीं क्या नहीं सर, मिलीफोलियम क्या ऐसा बोला, मिलीफोलियम सूरत तुमने बताया, ऊपर से ही बोल रही थी माशाल्लाह। मिलीफोलियम 1000 में पहले दे दी जाए तो बाज़ दफ़ा एक्सीडेंटली मसलन प्लेसेंटा प्रीविया हो या और कुछ वजूहात हों तो ब्लीडिंग की बहुत सख्त टेंडेंसी पैदा हो जाती है, यानी ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है और बाद दफ़ा सर्जन तक पहुंचने से पहले पहले मरीज़ा मर जाती है। ऐसी सूरत में अगर ये मिलीफोलियम 1000 में दी गई हो तो अल्लाह के फजल से फौरी तौर पर उसको कंट्रोल में लाती है ब्लीडिंग को। ये एक्सीडेंट्स की दवाएं, हंगामी दवाएं, ये तो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, अजबर याद होनी चाहिए। आवाज बैठने की जो चोटी की दवा इसने तजवीज की है वो है कॉस्टिकम। ब्लैडर मसल्स के लिए भी कॉस्टिकम, वो तो मैं बयान भी कर चुका हूं, खासतौर पर शॉक्स में। मेरे डॉक्टर से ये क्या मुहावरा है, सिंपैथेक्टमी? सिंपैथेक्टमी हुजूर ये स्पाइनल कॉर्ड के जो फाइबर्स होते हैं ना जी, वो कुछ उनको काट देते हैं ताकि वो ज़्यादा ओवर एक्टिव अगर हो जाएं, सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक पेन महसूस ना हो। जी जी हुजूर, यानी एक जगह पेन हो रही है दूसरी जगह होने लग जाती है जहाँ नहीं होनी चाहिए, वो भी। और हुजूर वो तो होता है सिंपैथेटिक पेन, जी, तो उसके साथ इसका ताल्लुक नहीं है? हुजूर, अच्छा, ये सिंपैथेटिक मसलन जैसे कहते हैं कि पुराना अल्सर बहुत रिकरेंट हो जाएं हाँ हाँ, तो एसिड सिक्रीशन को कम करने के लिए वो कुछ नर्व फाइबर ऐसे जो पैदा करते हैं उनको काट देते अच्छा हैं। अच्छा, ठीक है। वो बड़े सिलेक्टिव मैं सिंपैथेटिक समझ रहा हूँ ताकि उसको जो जाते हैं पल्सेस पहुँचती हैं जी हुजूर, ग्लैंड्स तक, बिल्कुल उनमें कमी हो जाए तो निस्बतन कम एक्टिव हो जाएंगे। जी हुजूर, ठीक है, इसको सिंपैथेक्टमी कहते हैं। जी हुजूर। तो ये कहता है कि कहाँ गई इसकी सिंपैथेक्टमी? ब्लैडर, अगर ये पेशाब का ही कह रहा है, ब्लैडर वो ज़्यादा मसल्स टाइट हो जाते हैं बार दफा, जी सिंपैथेक्टमी हुई है तो ब्लैडर काम करना बंद कर देता जी है, हुजूर, उसको भी कॉस्टिकम ही ठीक करता है। वो नर्व्स की बहरहाल कमी की वजह से। जी। 200 मोस्ट लाइक ये ठीक है, मैं तो देते ही 200 में अक्सर
اور کاسٹیکم 200 میں خدا کے فضل سے بہت افیکٹو ہے. ہاں اگر فالج ہو چہرے وغیرہ کا تو اس میں 1000 ریپیٹ کیا جا سکتا ہے. میں تو 1000 روزانہ کاسٹیکم دے دیتا ہوں, کبھی کوئی نقصان نہیں دیکھا. اور ایک مریضہ نے مجھے جرمنی سے لکھا تھا کہ میں نے دن میں 3 دفعہ 1000 استعمال کیا اور نقصان تو نہیں, لیکن جو فالج لمبے عرصے سے ٹھہرا ہوا تھا اسی قسم کا وہ 24 گھنٹے میں ٹھیک ہو گیا. تو تھا وہ کیس ٹپیکل کاسٹیکم کا, مگر یہ ضروری نہیں کہ اتنا تیز ٹھیک ہو, بہت پش بھی نہیں کرنا چاہیے. بہتر یہی ہے کہ کچھ دھیما قدم رکھیں. بچوں کی ٹیزنگ کے موقع پر کیا کیا دوائیں کام آتی ہیں؟ یہ بہت اچھی چیز ہے, یاد رکھنی چاہیے. ہاں کیوں کیا ملک دیتے ہیں, کیا وجہ, کیا تکلیف ہے؟ ہاں چڑچڑاپن ایک عمومی علامت پیدا ہو جاتی ہے, اس لیے کیا ملا دے دیتے ہیں. مگر رات کو جو کیا رات کو روتا ہے, رات کو ہوتا ہے کیمومل رات کو دانت میں درد ہوتی ہے. نہیں, دانت کے درد کی بات نہیں کر رہا, بچہ جو دانت نکال رہا ہے ٹی بی اس کو کہتے ہیں, اس میں کیموملا دیتے ہیں روٹین میں. مگر میرا تجربہ ہے کہ جب اگر اس کو آسانی سے دانت نکلوانے ہوں, بچے کے تکلیفیں کم سے کم ہوں اور ہنستا کھیلتا دانت نکالے, اس میں ایک فارمولا ہے فیرم فاس, سلیشیا, کیلکیریا فلور اور میک فاس یا کالی فاس. میک فاس اگر درد ہو, ورنہ کالی فاس. یہ اگر دینا شروع کر دیں شروع میں 2-3 دن 3 دفعہ, پھر 1 دفعہ کر دیں, اور ٹیدنگ کا زمانہ جس میں وہ دانت نکالتا ہے اس میں اگر مسلسل دیں تو بغیر کسی تکلیف کے بچہ آرام سے دانت نکال لیتا ہے, کوئی ابتلائی نہیں آتا اس پر. اگر 1 دفعہ تکلیف شروع ہو جائے اور یا ویسے شروع سے دقت ہو اور چڑچڑاپن, پھر کیموملا کام کرتا ہے. سلیشیا, کیلک فلور, کیلکیریا فلور اور میک فاس درد ہو تو یا کالی فاس. آئی پریفر کالی فاس. عام حالات میں کالی فاس بہتر ہے, لیکن اگر درد ہو میک فاس. خاص طور پر تو میک فاس اس کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. یہ ہر قسم کی انفلمیشن کو بھی کم کرتا ہے نسخہ. اس کی گروتھ کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سلیشیا اور کیلکیریا فلور, ان کو یہ زیادہ مقدار میں پروڈیوس کرنے لگ جاتا ہے. تو اکثر یہ ایسا میں نے دیکھا ہے کہ نسخہ بہت کامیاب, اور شاید ہی کبھی ضرورت پڑی ہو کسی اور چیز کی, یہ شروع کرا دیں تو آسانی سے دانتوں کے نکلنے کا زمانہ گزر جاتا ہے بغیر تکلیف دیے. ہاں اگر وہ ہو دانتوں کے شروع میں ہی ڈسٹورشنز ہوں, رنگ بگڑا ہوا ہو, تو اس کی اور دوائیں بھی ہیں. اسٹیفیسیگریا ہے مثلا, مرکسول ہے. تو اس صورت میں اس کی مرض پہچان کر اس کی دوا دینی چاہیے. لیکن سلیشیا ویسے خود کافی کور کرتی ہے ان چیزوں کو. اگر سلیشیا وقت پہ مل جائے کیلکیریا فلور کے ساتھ تو عموماً پھر ایسے دانت صحت مند ہی اگتے ہیں, اس میں کوئی خرابی نہیں دیکھی گئی. سی سکنس کے لیے یا موٹر وغیرہ میں چلتے وقت سکنس کے لیے کون سی دوا دیتے ہیں آپ؟ کوکس کیکٹائی نہیں, کاکولس, سوری کاکولس. کاکولس کس طرح دینی چاہیے؟ کیریج کے لیے نائٹرک ایسڈ بھی دینا چاہیے. وہ اور چیز ہے. وہ اگر سر درد کو کیریج میں آرام آئے
अगर वो टांगे बैठ के चल रहे हैं उसमें सिर दर्द को आराम आता है, उस वक्त नाइट्रिक एसिड उसकी अलामत। क्यों जी डॉक्टर रशीद, आपको अलामतें याद हैं? नाइट्रिक एसिड की अलामत इसमें लिखी होगी, कैरेज और नाइट्रिक एसिड। मगर मतली से कोई ताल्लुक नहीं। हरकत से मतली का ब्राउनिया से ताल्लुक है, काकुलेक्स से है, और अमूमी ताल्लुक इपिकॉक से है। नक्सवामी का अच्छी है मतली में। जो फार्मूला मैंने बनाया हुआ था मतली का अमूमी और अक्सर अच्छा काम करता था, उसमें काकुलस, नक्सवामी का, इपिकॉक और नहीं आर्सेनिक और आर्सेनिक, ये चीजें थी। अगर ये फेल करे तो फिर दूसरी चीज देता था, मगर मेरा तरीका ये था, अभी भी बच्चों को जो देता हूँ और उसमें फायदा होता है। सफर से पहले अगर 1 घंटा पहले एक खुराक दे दें और सफर पे चलने से पहले चंद मिनट पहले फिर एक और खुराक दे दें, फिर घंटे 2 घंटे के बाद दोहरा दें, तो बिलअमूम बिल्कुल आराम से सफर गुजर जाता है। इससे एक ये भी फायदा होता है कि बच्चे को नींद आ जाती है, या बड़े को भी, और नींद की वजह से मतली नहीं होती। कोशिश करनी चाहिए ऐसे मरीज को जगाया ना जाए खाम खा। ड्राइवर को देंगे तो सबको नींद आ जाएगी। क्या ड्राइवर के लिए? हम वहाँ पायलट को है नहीं, वो तो ऑटोमेटिक पता चलता है बेटा। हर मतली के लिए, सफर की मतली, ठीक है, सी सिकनेस सिर्फ नहीं, हर सफर की मतली के लिए, ट्रैवल सिकनेस। ये जो कैमोमिला का इस्तेमाल बताता है, ये 6th पोटेंसी में बता रहा है, और तरीका ये है, ये बताता है कि हर आध घंटे के बाद 6 खुराक तक इसी तरह देते चले जाओ। कैमोमिला की बात मैं कर रहा हूँ। क्या? नहीं, वो खत्म होगी बात, मैं वापस कैमोमिला पे आ चुका हूँ, गलती होगी मुझसे, सफर से वापस आ गया हूँ। कैमोमिला से बात छोड़ी थी ना, तो सी सिकनेस पे शुरू हो गई थी। कैमोमिला इसलिए हुई थी कि अचानक मेरी नजर काकलेक्स पे पड़ गई थी, तो अभी बहुत सी दवाएं देखने वाली हैं। कैमोमिला पे मैं वापस आया हूँ। उसका ये तरीका बताता है कि 6th पोटेंसी में दी जाए और आधे घंटे के बाद रिपीट की जाए 6 खुराकों तक, उसके बाद ये काम करेगी, आज खुद काम शुरू कर देगी। कहता है इफेक्टिव तभी होगी अगर मेंटल स्टेट इंडिकेट करे। तो मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं की, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कैमोमिला की। जो फार्मूला मैंने बताया है वो बहुत बेहतर है और माकूल फार्मूला है। जो जरूरत है जिस्म को वो पूरी कर रहा है, कोई जरूरत ही नहीं किसी और चीज की। तो इसने 7 शर्तें लगा दी हैं। अगर 6-2 इस तरह खुराकें, तो पता है किस तरह काम करेगी। अगर चाइल्ड पीविश हो, इरिटेबल हो, चीजें मांग के फेंक रहा हो और बदतमीज हो और हर वक्त कह मुझे उठाए फिरो, तब कैमोमिला काम करेगी। तो इसी मुसीबतें कौन देखे आदमी। इस मुसीबत से गुजरने की बजाय सीधा वो फार्मूला रखें। और दूसरा ये कि इसमें 6x को बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 6 को 1000 में कैमोमिला बहुत बेहतर काम करती है, इमीडिएट काम करती है, समझे। क्यों मंसूरा आपने सर हिलाया, कोई बात है? देखा? हाँ, ये गवाह देखे मौजूद है। किसको दी थी? अपनी लाडली बेटी की बेटे को? हैं? बड़े को भी दी थी, तो उन्होंने बोला तुमने मुझे क्या दवाई दी आज? अच्छा, फौरन फर्क पड़ गया। चैलिडोनियम आम बातों के अलावा अगर
رائٹ اسکیپولا، یہ جو کندھے کے پیچھے وہ کارٹلیج کا بنی ہوئی چپنی سی ہوتی ہے نا پیچھے دونوں طرف، جو پیچھے سے حفاظت کرتی ہے، اس کو اسکیپولا کہتے ہیں. اسکیپولا کے کنارے پر نیچے اگر درد ہو اور دائیں طرف ہو تو اس میں یہ کہتا ہے کہ چیلیڈونیم اسپیسیفک ہے، اور 1x سے لے کر 30 پوٹینسی تک کام کرتی ہے. یہ انڈوں سے اسہال لگنے کا اسپیسیفک نسخہ چینیمم آرس ہے، اور اس کا بہت کم اور استعمال لوگوں کو یاد ہوگا. مجھے بھی صرف اتنا ہی یاد تھا کہ انڈے سے اگر دست لگ جائیں تو چینیمم آرس نسخہ ہے، اور انڈے سے ویسی تکلیفیں ہوں تو کیلکیریا کارب اونچی طاقت میں اس کے لیے مفید ہے. جس کو انڈا ہضم نہ ہوتا ہو اور تکلیفیں ہوں تو اس کو بے شک 1 لاکھ میں کیلکیریا کارب دے دیں، اور انڈے کے علاوہ اور بھی چیزیں جو ہضم نہیں ہوتی تھی وہ نارمل ہو جاتی ہیں، ہضم ہونے لگ جاتی ہیں. اس لیے یہ جو چینیمم آرس ہے تو اسپیسیفک اس میں ہے. اور کیا اس کے استعمالات ہیں؟ کبھی آپ نے تجربہ کافی کیا ہوگا کوئٹے میں، چینیمم آرس کو کم ہی استعمال کیا. کلوروفارم کے اوپر اس نے خام خواہ ایک لیکچر جھڑا ہوا، کچھ بھی نہیں، بیکار چیز ہے بالکل. کولیسٹرینم کا تو تجربہ بالکل درست تھا میرا. بہت لمبا عرصہ ان مریضوں کو کھلایا ہے جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو اور رجحان ہو کہ دوبارہ کلوٹنگ ہوگی. تو کولیسٹرینم جو کولیسٹرول ہی سے بنی ہوئی ہے، یہ 30 یا اونچی طاقت میں بہت مفید ہے، لمبا عرصہ کھلانی پڑتی ہے. میں تو عام طور پر اس کے ساتھ فائٹولاکا ملا دیتا ہوں، تو موٹاپے کا بھی نسخہ ہے، اور ہارٹ اٹیک کو پریونٹ کرنے کے لیے، کلوٹنگ کو پریونٹ کرنے کے لیے اچھا کام کرتی ہے. اور اس صورت میں کریٹیکس کو نہ بھولیں، وہ بھی ساتھ ضرور دیں. مگر موٹے آدمی کو فائٹولاکا بیری دینا ہے، عام فائٹولاکا نہیں دینا، دو الگ الگ ہیں. ہاں، امریکہ سے پتہ کریں کیا قصہ ہے. مجھے علم نہیں. کیا اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا خاص بات ہے، بتائیں نا، ہمیں بھی فائدہ ہو. بورک نے صرف وہی ڈسکس کیا، بیری اور وہ مینشن نہیں کیا. بیری ہے فاطمہ کا بیری، بورک میں ہے، ڈیفینیٹلی ہے. حضور ہم نے منگوایا تھا، حضور ہم نے منگوایا تھا یہ فائٹولاکا بیری، تو 2 دفعہ منگوایا، دونوں دفعہ انہوں نے بیریم بھیج دیا. تو بیریم وہ تو بالکل چیز ہی اور ہے. ہاں، تو وہ فائٹولاکا نہیں ساتھ لکھا ہوا. ہمارے پاس ہے فائٹولاکا بیری، ان کو پڑھا دیں، صفحہ بتا دیں. صفحہ 516. اور عام فائٹولاکا کا نام کیا ہے؟ آپ نے کون سا لیا ہے بورک؟ پتہ نہیں، پاکستان سے آئی میری کتاب، اور جو دوائی آئی ہے اس پہ صرف فائٹولاکا لکھا ہے. کچھ ٹھیک ہے، فائٹولاکا لکھتے ہیں. چلو، فائٹولاکا یا فائٹولاکا بیری دو ہی چیزیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ فائٹولاکے کا نام جو ٹیکنیکل ہے وہ ہو سکتا ہے امریکانو ہو. آپ اس میں دیکھیں، لیٹن میں دیکھیں نا، لسٹ آف ریمیڈیز میں دیکھیں، آخر پہ کامن نیم فائٹولاکا اور لیٹن نیم میں دیکھیں، دونوں میں. اس میں فرق صرف یہ ہے کہ درخت وہی ہے، ایک ہی چیز ہے.
उसको फाइटोलाका अमेरिकन कानो कहें या जो भी कहें, उसकी जड़ों से जो दवा बनती है वो फाइटोलाका कहलाती है। जो उसके बेर जो फल लगा है उससे दवा बनती है, उसको फाइटोलाका बेरी कहते हैं। इतना सा फर्क है, समझिए। कॉकस कैक्टाई 3x से लेकर 200 तक किस चीज में मुफीद है ज्यादा? बलगम धागे क्या? ठीक है। बलगम धागों की तरह, तार की तरह। अगर जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनमें तार की तरह स्ट्रिंग्स बन जाएं तो उसके लिए इलामत है खास तौर पर कॉकस कैक्टाई की। लेकिन स्पेज़म जो है लेरिंग्स का बार बार, क्रॉनिक कॉफ और खास तौर पर हुपिंग कॉफ, जो काली खांसी बिगड़कर लंबी हो जाए तो उसके आखिरी हिस्से के लिए, यानी असल में जरासीम वगैरह खत्म हो चुके होते हैं पहले ही, 100 दिन के अंदर इसको अपना सर्कल पूरा कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ 3 महीने इसका तभी दायरा बयान किया जाता है जिसमें ये अपना दायरा मुकम्मल करती है। चीन में इसको 100 डेज कॉफ कहते हैं, वो 100 दिन कहते हैं इसको दो, तो कुछ थोड़ा सा पहले कुछ बाद मिला के इसके अंदर मुकम्मल होना चाहिए। अगर उसके बावजूद खांसी बच जाए जो काली खांसी के मुशाबे ही हो और चलती रहे तो उसको कहते हैं सिम्टोमेटिक कॉफ। ये असल काली खांसी नहीं है, बल्कि उसने जो आदतें डाल दी हैं, बाज जिस्म के हिस्सों को इरिटेट हो चुके हैं, बार बार उस आदत के मुताबिक वो हरकत में आते हैं, उनमें जफा पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे मरीजों के लिए कॉकस कैक्टाई बहुत इफेक्टिव है। यानी सिम्टोमेटिक कॉफ जो बच जाती है उसमें, वैसे इब्तिदा में भी देते हैं, लेकिन इब्तिदा में जो मर्जी आप जोर लगा लें, कुछ देर फायदा देकर फिर दोबारा वही, फिर फायदा थोड़ा सा, फिर वही, वक्ती रिलीफ होता है। लेकिन आज तक मैंने एक मरीज को भी होम्योपैथिक जरिए से हफ्ता 10 दिन के अंदर ठीक नहीं किया, कभी भी नहीं हुआ। सिर्फ ये फर्क पड़ता है निस्बतन आराम से वक्त गुजरेगा या ज्यादा तकलीफ से गुजरेगा, कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी कि नहीं होंगी। इसलिए इलाज फायदा तो देता है, मगर खांसी अपना वक्त जरूर पूरा करती है। और बड़े फायदों में से यह है कि अगर इसका इलाज ना किया जाए तो बाज़ दफ़ा ऐसे मरीज अंधे भी हो जाते हैं, क्योंकि इतने सख्त स्पेज़म्स होते हैं, ऐसी सख्त उल्टियाँ आती हैं कि उसकी वजह से आंखों की रगें फट जाती हैं। तो इलाज ज़रूरी है, मगर ये तवक्को लगा बैठे कि यहाँ लिखा हुआ कॉकस बहुत अच्छा है या फलां अच्छा है तो फौरन ठीक हो जाएगी, यानी खांसी ठीक हो, ये नहीं हो सकता। अगर किसी के इल्म में हो तो मेरे इल्म में नहीं है बहरहाल। इसलिए तवक्कुआत अपनी मुनासिब रखनी चाहिए। जो दवाएं, जो किताबें हैं ना अक्सर निस्बतन कम जिम्मेदार होम्योपैथ की, तो ऐसे ऐसे जबरदस्त चुटकुले बयान करती हैं। काली खांसी ये दो, ये इलाम है, बस ठीक होता हुआ था कुछ नहीं। बहुत मायूसियां देखनी पड़ती हैं होम्योपैथ को अक्सर। डायस्कोरिया की क्या अलामत है? कॉलोसिंथ का अपोजिट है ये। कॉलोसिंथ में आगे की तरफ झुक के यूं आराम आता है, इसमें पीछे की तरफ, ठीक है। मगर इन दोनों दवाओं के अलावा भी जरूरत पड़ती है। बाज़ दफा इससे फायदा नहीं होता,
मैकफॉस काम आती है, बाद दफ़ा नक्सवामी काम आती है, बाद दफ़ा प्लम्बम, अगर नाफ के नीचे अंदर की तरफ तनाव हो, खिंचाव हो तो बेलाडोना काम आ जाती है, आर्सेनिक। मुख्तलिफ जहतों से मरीज को देखना चाहिए। इस पर डिपेंड कर देना कि दो ही इलामतें हैं दुनिया में, या ये या वो, ये गलत बात है। बाद दफ़ा सॉरी अपेंडिसाइटिस है तो उसके लिए अपेंडिसाइटिस का नुस्खा चाहिए फौरी तौर पे। क्या है वो? आयरिस आयरिस 10X वस्ती कलर में, वो तो और आर्निका और ब्रायोनिया, ये तीन मिला के दें तो अपेंडिक्स की इलामतों को फौरी तौर पर कंट्रोल में लाता है। लेकिन लंबा अरसा नहीं चलेगा, एक दो दफ़ा फ़ायदा दे देगा, उसके बाद अगर अपेंडिक्स का इलाज ना हो मुस्तकिल तो फिर नहीं काम करता। मुझे जो अपेंडिक्स शुरू हुआ था वो कम से कम 5-6 साल पाला मैंने, और ये दवाइयाँ और बाद और मौके की दवाइयाँ इस्तेमाल करता था तो हट जाता था, ठीक हो जाता था, लेकिन फिर हो जाता था। फिर जब मुझे अटैक हुआ है, वो मोटर ड्राइव कर रहा था लाहौर से रबवा से कराची तक, तो सात का बाद तकरीबन मिडिल में आके रात अटैक हुआ है और वो काफ़ी सीवियर था। और फिर भी ये मैंने दवाइयाँ खाई, सुबह इस काबिल हो गया था कि खुद ड्राइव करके कराची तक पहुँच जाऊँ। फिर वहाँ रात को दोबारा फिर हुआ, फिर सुबह मुझे लेके गए सर्जन के पास, उसी वक्त उसने चीरा तो हैरान था कि सारा परफोरेट हो चुका था, और उसके बावजूद कहते मरीज मरा क्यों नहीं। बुखार की इलामतें भी कंट्रोल थी। होम्योपैथिक दवाएं सर्जरी का बदल तो नहीं, मगर सर्जरी की तकलीफ ना होने के नतीजे में जो खतरात हैं उनमें बहुत सहारा बनती है। फौरी सर्जरी मुहैया ना हो तो उसका मुकम्मल मुतबादिल ना होने के बावजूद उसके खतरात को कम कर देती है। यानी सर्जरी मुहैया ना होने से जो फौरी खतरात हैं उनको कम कर देती है। मुझे एक सवाल पूछना था। हाँ जी पूछें। हुजूर, जर्मनी से किसी का फोन आया था कि 10 साल की बच्ची है, उसको 8-10 महीने से कान से पास आ रहा था। तो अब डॉक्टर्स ने कहा, पहले तो वैसी दवाइयाँ देते रहे, अब वो कहते हैं कि कान के पर्दे में सुराख है दाएं कान के, और वो कहते हैं कि फौरी सर्जरी करनी चाहिए। ठीक है। तो ये लोग घबरा रहे हैं, कहते हैं कि हुजूर से पूछ इसका तो मैं जवाब दे भी चुका हूँ और दवाई भेज भी दी थी कोई फिर सब। हाँ? नहीं तुम भेजी थी जवाब एक। हाँ हाँ चला गया था, और उसके एक की तरफ से तो जवाब भी आ गया था कि बिल्कुल ठीक हो गया फौरी तौर पे। इसका मुझे पता नहीं, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले, एक हफ्ते के अंदर की बात है, किसी ने यही राम से आप बता रही हैं लिखी थी, उनको मैंने दवाई भेजी थी, गालबन सिलीशिया सीएम की एक खुराक दे दें बस, और उसके बाद उसकी तरफ से इतला मिली कि बिल्कुल ठीक ठाक है बच्ची। ये यकीन ही नहीं कि वही हो, लेकिन उसके पास आपके पास एड्रेस है उसका, जी हाँ जी, उससे पूछें, टेलीफोन से पूछें कि तुम्हें कोई नुस्खा मिला था और तुम्हारी बच्ची ठीक हुई है कि नहीं। समझ गए? अगर ना हुई हो तो सिलीशिया सीएम की एक खुराक दिलवा दें, ठीक है। हुजूर, अगर एक्सीडेंट में दिमाग पे शदीद चोट आई तो उसके लिए कौन सी दवाई है? फिर क्या हो, सवाल तो ये है। नहीं, अगर उससे फिर उसकी याददाश्त पे भी असर हो जाए। फौरी दवा एक्सीडेंट में अगर सर पे चोट लगे तो एक कम्बिनेशन है नेट्रम सल्फ 1000 और आर्निका 1000। ये बेहतरीन कम्बिनेशन है मेरे तजर्बे में, और कभी भी मायूस नहीं होता आदमी। लेकिन अगर इंजरी ज़्यादा गहरी हो चुकी हो और क्लॉट्स बनकर दिमाग का कुछ हिस्सा मारूफ होने लग जाए, तो मुसलसल बेहोशी हो, तो उसमें ओपियम इज ए मस्ट। फौरी तौर पर ओपियम आर्निका के साथ मिला के दी जाए। हो गया बात? अच्छा। वो कई दफ़ा
ابھی یہ جرمنی میں ایک کیس ہوا تھا اللہ کے فضل سے, وہ تو موت کے کنارے پہ پہنچا, ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا, کوئی دماغ کام نہیں کر رہا, مشین پہ لگا ہوا آدمی, وہ خدا کے فضل سے اس کے, میں نے کہا اس کے منہ میں چاہے صرف قطرہ سے ہونٹ گیلے کرنے پڑیں, دوائی ضرور دینی ہے, وہ نارمل ہو گیا. اب اللہ کے فضل سے انٹینسو کیئر سے باہر آ گیا, باتیں کرنے لگ گیا ہے, باتیں تو نہیں بھی کرنے لگا لیکن سمجھنے لگ گیا پوری طرح, اور بڑی تیزی سے ریکور ہو رہا ہے. اس کو یہی دیا تھا, اور آخر پہ پھر پلمبم دیا تھا. تو روٹین میں نیٹرم سیلف 1000, آرنی کا 1000, اگر وہ پوری طرح کام نہ کرے تو, اور دماغی علامتیں معروف ہونے کی ظاہر ہوں, تو اوپیم, اور اوپیم کے بعد کے جو رہ گئے ہیں اثرات, ان کے لیے پلمبم 200 بہت افیکٹو ہے. اور یہ میرا خیال ہے اوپر بھی جا سکتے ہیں آپ. میں چونکہ 200 ہی استعمال کرتا ہوں اس لیے میں نے 200 کہا ہے, لیکن بعید نہیں کہ 1000 میں کام کرے, اور یہ ہو سکتا ہے زیادہ ہی اچھا کام کرے, سمجھیں. اوپیم تو جی, اوپیم میں 1000 میں لے چکا ہوں پہلے, افیکٹو ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. مگر اس مریض میں تو میں نے 200 دلوائی تھی, 200 میں اوپیم, اور پھر بعد میں 200 میں یہ, یا مجھے یاد نہیں رہا, پتہ کرنا جی اس سے منور کے متعلق. کون آیا تھا, کیا رپورٹ ہے؟ بہتر ہو رہا ہے, ہاں ابھی دائیں سائڈ جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے, اور بائیں سائڈ جو ابھی کوئی تھوڑی سی افیکٹ ہے اس میں. تو لیکن دائیں سائڈ میں حرکت آ گئی ہے. پہلے تو مکمل مفلوج تھا نا, سر سے پاؤں تک, نہ دماغ کام کر رہا تھا, نہ کوئی اور حرکت تھی. ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ بس مشین اتاری تو گیا, اور جو دیکھ لیں اللہ کے فضل سے مسلسل پروگریس ہے. ایمرجنسی میں جو بھی اچانک ضرورت پڑتی ہے وہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اس وقت بعض دفعہ کتابیں کنسلٹ کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا, از خود فوراً منہ پہ آنا چاہیے کہ کیا چیز کام آئے گی. ڈروسرا کے متعلق کیا سنا ہوا آپ نے؟ شروع میں یا آخر پہ؟ ایک خوراک دینی بس, ہاں ایک خوراک دینی تو پھر نہیں. اچھا, اس کے مجھے باقی پھر بتائیں گے کہ لقمان کی انگلی کافی دیر سے اٹھی ہوئی ہے, کل انشاءاللہ. میں زیادہ وقت اس لیے لیتا ہوں تاکہ یاد ہوتا جائے ساتھ ساتھ, ورنہ تو منٹوں میں ختم ہو سکتا ہے لیکچر. ٹھیک ہے, السلام علیکم.